the concept of completing the square. We have three basic steps in that. अगर ये तीन steps clear है, that means completing the square का concept would be absolutely 100% at the end of the lecture. So what are the three steps? First step, completing the square form होती किस तरह की है, right? उसका structure किस तरह का completing the square form. My experience says कि जो students इसमें struggle करते हैं उनको completing the square form की structure की understanding नहीं होती, right? So the first step is we'll see, हम देखेंगे कि completing the square form का structure किस तरह का होता है, right? Number two point would be कि what is a quadratic equation and what is a linear equation. Just briefly going through that कि completing the square form is a method to solve a quadratic expression or a quadratic equation, right? हम completing the square form को basically it's a compact way of writing a quadratic expression or a quadratic equation. ठीक हो गया? And the third thing is the method itself. It's a two-step process. तो हम उसको देखेंगे कि completing the square form किस तरह से हम उसको solve करते हैं, right? So any topic, if you have एक brief सा आपके पास summary होगी, एक brief सा road map होगा कि how would you approach that concept, तो फिर बड़ा easy हो जाता है, right? So coming to point number one, what is the completing the square form? Algebra की identities हमने पढ़ी हुई हैं in previous grades और अभी भी हम algebra की identities को बड़ा frequently पढ़ते हैं कि किस तरह से हम expand करते हैं two terms को. Let's say if we have a plus b whole square, so हम इसको किस तरह से expand करते हैं? We write a square first term का square plus 2 times product of the two middle terms 2ab and plus second term का square, that is b square. And अगर इसमें minus sign है तो we just simply write middle term हमारे पास negative आ जाता है, which is a square minus 2ab plus b square. तो ये ऑलरेडी हमने बड़ा फ्रीक्वेंटली हम इसको क्लासरूम्स में भी डिस्कस करते रहते हैं कि these are the two basic algebraic identities जो एक्सपेंशन के अंदर हम सॉल्व करते हैं. टू टर्म्स की एक्सपेंशन a प्लस b है a माइनस b, राइट? सो अब बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म कौन सी है? दिस फॉर्म इज कॉल्ड द कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म. ये जो टू टर्म्स का होल स्क्वायर है. सो व्हाट विल बी गिवन वुड बी, हमें इस तरह का फॉर्म दिया होगा एंड वी वुड हैव टू convert back in this form, right? We have to convert in this form. ये जो whole square की form है, two terms बीच में minus sign या plus का sign और whole square की form में होगा. This is completing the square form. इस form को हम completing the square form कहेंगे, which is usually अगर आप books के अंदर देखें तो वो इस form को कहते हैं x plus a whole square. Normally कोई constant आ जाता है plus b लिख देते हैं. This would be a x minus a whole square और यहां माइनस भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, that doesn't matter. So this is the standard completing the square form, right? So I hope कि completing the square form किस तरह की होती है. Now this point should be absolutely clear कि हम किसी भी expression को, quadratic expression को हम convert करेंगे a plus b whole square की form में, right? टू टर्म्स होगी, बीच में प्लस या माइनस का साइन और होल स्क्वायर की फॉर्म में हम उसको लिखेंगे. तो दिस इज नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, राइट? नंबर वन. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म का हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म होती किस तरह की है, राइट? राइट बेटा. नाउ पॉइंट नंबर टू, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म एज आई ऑलरेडी सेड कि इट्स अ मेथड basically to write in a very compact way a quadratic expression or a quadratic equation, right? मैं सिर्फ in a very brief manner मैं difference discuss कर लेता हूं. in a straight line equation जो कि होती है y is equal to mx plus c की फॉर्म में, जैसे I can write y is equal to 2x plus 3. So by just looking at this equation आपको पता चल जाए कि this is a straight line equation. So how would you differentiate कि it's a linear equation कि बेटा highest power of y is 1 और highest power of x is 1, यानी x वाली टर्म है और highest power of the equation is 1. इसको हम कहते हैं straight line equation, linear equation, right? Quadratic equation होती है इस फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म ये ax square plus bx plus c.
वी कैन सी के इस पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म है. सो इन सच एन इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. या अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस इज कि इन एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी कैन सी y की पावर 1 है, एक्स स्क्वायर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, कांस्टेंट टर्म है. सो हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 2. दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? सो लीनियर इक्वेशन आपको देखते ही पता चल जाए जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, x की पावर 1 है, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन, राइट? इसमें y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है. नॉर्मली हम एक टर्म यूज करते हैं, पावर की टर्म भी यूज करते हैं, और डिग्री, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, या मैं यूं कह दूं हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 1. y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है. तो बेटा ये होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1 जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज 2, राइट? वेरिएबल की पावर 2 होती है. या हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, राइट? तो वी कैन सी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है. सो दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज अ मेथड टू सॉल्व या टू राइट इन अ कॉम्पैक्ट वे अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये आगे it's a method to solve that. So we've already learned many methods, जैसे middle term breaking है, आपके पास quadratic formula है. Now the third method is completing the square, right? So I hope now this is clear. हमने दो चीजें अभी तक डिस्कस की हैं बेटा. Number one, you should be absolutely clear कि completing the square form किस तरह की होती है. How does a completing the square form look like, right? Number two, completing the square form method कब यूज होता है? You'll be given a quadratic expression or a quadratic equation, उसको हमने सॉल्व करना होगा. So it's basically a compact way of writing the same quadratic expression or a quadratic equation, right? So linear equation और quadratic equation का difference भी हमने briefly in a very simple manner बेटा हमने डिस्कस किया कि linear equation किस तरह की होती है और quadratic equation किस तरह की होती है, राइट? अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट कि व्हाट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट एन एक्सप्रेशन, अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इनटू बाय दिस कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट? सो जरा हम इसको क्विकली देखते हैं. हम लेट मी रेज दिस, और अब जरा हम जरा इसको देख लेते हैं. ओके, सो आई एम जस्ट राइट एन एक्सप्रेशन. Let's say x squared plus 8x. ठीक है जी, this is a quadratic expression because again इसमें highest degree 2 है. So this is a quadratic expression. So बेटा it has two steps, right? Step number 1, coefficient of x squared should be 1, right? Step 1, मैं लिख देता हूं. Coefficient of x squared should be 1. So if the coefficient of x squared is 1, which we can see कि इसमें 1 है, we'll move on to the next step. Step 1 complete हो गया, then we'll go to the next step. So what is the next step? Step number 2, right? So just divide the coefficient of x by 2. Whatever the coefficient of x is, divide the coefficient of x by 2 and whole square So इस केस में the coefficient of x is divide the coefficient of x. coefficient की बात हो रही है, right? So x का coefficient 8 है, right? So हम साइड पे लिखते हैं, हम इधर लिख लेते हैं. So 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो this becomes 4, right? So इसका हमने whole square करना है. Divide the coefficient of x by 2 and whole square. बेटा remember that whole square open नहीं करना. ब्रैकेट्स के अंदर अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो जस्ट सिंप्लीफाई विद इन द ब्रैकेट्स. सो ब्रैकेट के अंदर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बिकॉज सिंप्लीफाई हो सकता है. तो दैट बिकम्स 4 square, right? Once again, divide the coefficient of x. Whatever is the coefficient of x, हम उसको divide by 2 करेंगे और whole square कर देंगे, right? ये हमने whole square कर दिया. So what we do is कि you will add and subtract this square in the same expression. You write that x square plus 8x
और ये जो आपने होल स्क्वायर किया है ये एक दफा हम ऐड कर देंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रीजन भी कि यू कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, सो ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किए, सो दैट द इफेक्ट इज बीइंग कैंसल्ड आउट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 और माइनस 3 लिख देते, तो बेसिकली मैंने कोई चेंज नहीं किया। देखो ना, प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो रहे, सो द क्वेश्चन इज अनचेंज्ड, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है कि वी ऐड द होल स्क्वायर एंड वी सब्ट्रैक्ट द होल स्क्वायर सो दैट द इफेक्ट इज बीइंग कैंसल्ड आउट और ओरिजिनल क्वेश्चन आपका ओरिजिनल ही रहेगा, राइट। सो स्टेप नंबर 2, व्हाटएवर वाज द कोएफिशिएंट ऑफ x, हमने उसको डिवाइड बाय 2 किया और उसका होल स्क्वायर एक दफा ऐड कर दिया x वाली टर्म में और एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया। अब ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्स्ट 3 टर्म्स का आपका स्क्वायर कंप्लीट होगा, हमेशा फर्स्ट 3 टर्म्स का, राइट। ये स्क्वायर वाली टर्म्स आपने लिखनी है जिसके जो आपके बेसिस हैं, इधर से x आ जाएगा, इधर से 4 आ जाएगा, जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म्स है। और मिडिल टर्म का साइन ऑलवेज रिमेंबर दैट, अगर यहां माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। सो प्लस सिंपली पुट अ होल स्क्वायर विद दैट, सिंपली पुट अ होल स्क्वायर विद दैट, और व्हाटएवर इज लेफ्ट उसको ओपन कर लो। सो ये बेटा आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 8x को आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म से आपने यू रिटन इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 16, राइट। अगर हम इसको ओपन करेंगे a प्लस b होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई करेंगे, you will get the same expression जो कि आपके पास लिखा हुआ है, right? So I'll quickly give a quick recap. Beta step number 1, coefficient of x square should be 1. Number 1, x step 1 complete हो गया। आपने देखा कि x square का coefficient already 1 है। We move on to the next step. Next step आपके पास क्या है? The coefficient of x, whatever it is, उसको साइड पे लिखो, divide the coefficient of x by 2, x के कोएफिशिएंट को बेटा हाफ करो और उसको होल स्क्वायर कर दो एंड होल स्क्वायर, राइट। ब्रैकेट के अंदर सिंपलीफाई हो सकता है तो कर लो, बट डोंट ओपन द स्क्वायर। व्हाटएवर दिस नंबर इज, ये जो होल स्क्वायर है इसको एक दफा ऐड करना है उसी एक्सप्रेशन में और एक दफा सब्ट्रैक्ट करना है। पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, सो दैट द क्वेश्चन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये देखो ना, इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। तो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट फर्स्ट 3 टर्म्स का आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, राइट। तो आपने फर्स्ट 3 टर्म्स में से अब कैसे कंप्लीट करेंगे? स्क्वायर की जहां स्क्वायर है जिन टर्म्स पे, राइट, सो वो टर्म्स आप लिखेंगे और मिडिल टर्म का साइन एंड यू विल पुट अ होल स्क्वायर विद दैट, सिंपल इज दैट, राइट। आप स्क्वायर के अंदर वाली टर्म्स लेंगे, इधर से x इधर से 4 और मिडिल टर्म का साइन और यू पुट अ होल स्क्वायर विद दैट। ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। रेस्ट जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको आप ओपन कर दो। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये आपका स्टैंडर्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन गई, व्हिच इज इन द फॉर्म x प्लस a होल स्क्वायर प्लस b की फॉर्म में। ये बेटा आपके पास स्टैंडर्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में आ गया, राइट। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। हम अब इसकी 1-2 एग्जांपल्स करते हैं सो दैट कि ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इसको मैं रेज कर देता हूं। अच्छा, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से हम ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, राइट। एग्जामिनर कह रहे थे इसको वी हैव टू राइट दिस इन कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, ऑब्वियसली इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म is a method by which you write any quadratic expression or a quadratic equation in a compact way, और आप whole square की फॉर्म में उसको लिख देते हैं by completing the square form. Okay. Step number 1, coefficient of x square should be 1. Yes, coefficient of x square is 1. We move on to the next step. Coefficient of x, whatever is the coefficient of x, साइड पे लिख के divide by 2 कर दो, whole square कर दो। एंड जस्ट सी कि अगर ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई हो सकता है, फाइन, नहीं हो सकता, नो वरीज। सो ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, परफेक्टली फाइन। हम इसको ऐड करेंगे। बेटा ये x का कोएफिशिएंट था, हम x वाली टर्म में इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेंबर दैट। सो हम इसको एक दफा ऐड करेंगे और एक दफा हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट दिस टर्म, ये हम +1
let me erase this so that ये confuse ना करे आपको. ये हम इधर side पे लिखेंगे ऐसे, right? Just write that on the side. So step 1 already complete. Coefficient of x square is 1. Whatever is the coefficient of x, divide by 2 किया और उसका whole square. एक दफा add किया x वाली term में और एक दफा subtract. So that the effect is being cancelled out और original question remains as it is. Constant term को लिखना नहीं भूलना, right? So the same concept. First 3 terms का हमेशा square complete होगा. Always the first 3 terms, right? So वही चीज square वाली जहां squares है, just write down the terms x और इधर से 3/2 और middle term का sign plus. So x plus 3/2 का whole square. Simply put a whole square with that, right? ये जो square वाली terms है सिर्फ ये लिखनी है x और इधर से 3/2. Middle term का sign and put a whole square. बाकी open कर लेते हैं. We don't need that. So 3 square is 9. 2 square is 4 plus 1, right? So इसको बेटा हम we can easily solve this. हम इसको साइड पर लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं. So 1 minus 9/4 is what? Right? Take LCM. 4 LCM आ गया. So this is what? 4 minus 9, which is minus 5/4. So these are constant terms. इसको हमने simplify कर लिया, and this becomes minus 5/4. ये आपकी square complete हो गया, and this is a plus b whole square. ये completing the square form आ गई, or a constant with that, which is minus 5/4. Right? I hope this example is clear. It's again a 2-step process. Let's look into another example. हम एक और example देखते हैं. अच्छा जी. Let's say we put a 2 with this. हम एक coefficient put कर देते हैं, right? अच्छा बेटा, remember that. I always tell my students, completing the square form may don't include constant. You can include that and you can simplify, but the best approach is the simplest approach. Remember that. Keep things simple. इतना टाइम नहीं होता एग्जाम्स में कि हम स्टेप्स ही करते रहें. You keep it simple to the point. So I always advise students to keep this constant term out of the way, क्योंकि completing the square form में constant term को involve हम नहीं करते, right? So again, step number 1, coefficient of x square should be 1. अब 1 नहीं है. So what we'll do is we'll take 2 common from the terms in x. हम constant term को side पे लिख देते हैं, right? So we'll take 2 common. आपके पास क्या आ गया? x square plus 3/2x, right? That is how you take common. Right? For example, आपके पास है 7x square plus 3x. So आपने x square के कोएफिशिएंट को 1 करना है. So what you'll do is you have to take 7 common. You don't have a choice. So जब आप 7 common लेंगे, so ये 7 से divide हो जाएगा. That is how you take common. So that when you re-multiply, जब आप bracket open करेंगे, तो वही term बननी चाहिए. 7x square plus जब ये 7 multiply होगा, तो 7 और 7 cancel हो जाएगा 3x. So it remains the same. So remember that how to take common. I think ये grade 5, 6, 7 onwards, बड़ा rigorously हम इसको डिस्कस करते हैं. How to take common, how to factorize. Okay. So you've taken 2 common from the terms in x, and constant term को we don't include in the process of completing the square. इसको हम जरा फिलहाल बाय रखते हैं, right? So you've taken 2 common. Coefficient of x square is 1. X का coefficient 3/2 है और bracket के बाद +1 है. Okay. Now if you can see, step 1 is complete. Now you move on to step number 2. Right? So what was step number 2? Whatever is the coefficient of x, you write it on a side और उसको divide by 2 कर दो. उसको 2 already is in the denominator, so you have to divide that by 2. Right? Don't mix this 2 with the denominator. कि जी हमने 2 से divide करना था तो already 2 है. नहीं. Whatever is the coefficient of x, you have to divide by 2. तो जब आप divide करते हैं तो the number goes in the denominator, right? So 2. So ये हो जाएगा 3/4. So this will become 3/4. इसका whole square करना है, right? Whatever is the coefficient of x, you have to divide it by 2 और उसका whole square करना है. So this becomes 3/4 whole square. So the concept remains the same कि x वाली टर्म में एक दफा हम इसको add कर देंगे और एक दफा हम इसको subtract कर देंगे, right बेटा? Let me erase this side so that there should be no confusions. Absolutely.
अच्छा जी, एंड देन यू राइट +1, राइट? यहां पर आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी. लेट मी पुट दिस ब्रैकेट so that it's clear, right? So whatever is the coefficient of x, you divide it by 2 और इसका होल स्क्वायर कर दो, और वो एक दफा हमने ऐड करना है इन द मिडिल टर्म और एक दफा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो द इफेक्ट इज बीइंग कैंसिल्ड आउट, राइट बेटा? सो अगेन द कॉन्सेप्ट अब कंप्लीट हो गया. जो स्क्वायर जिन टर्म्स पे स्क्वायर है, जस्ट राइट द टर्म्स, इधर से x और इधर से 3/4 और मिडिल टर्म का साइन विच इज प्लस. यू जस्ट सिंपली पुट अ होल स्क्वायर विद दैट, राइट? ये जो स्क्वायर के अंदर वाली टर्म्स है, इधर से x और इधर से 3/4 और मिडिल टर्म का साइन एंड होल स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया. The rest you just simply open the brackets. 3 का स्क्वायर 9, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 +1, right? Now the major mistake students do is ये 2 को मल्टीप्लाई करना है. Now this is one term, you treat it as a term. So जब मल्टीप्लाई करेंगे तो there are 2 terms in the bracket. One is this completing the square form and the other is the fraction. So जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे, so 2 into x plus 3/4 whole square minus 2 into 9/16 ब्रैकेट क्लोज, राइट? या आपने ब्रैकेट के अंदर बिकॉज मल्टीप्लाई किया और ये बाहर +1 है, राइट? सो ये +1 इज आउटसाइड द ब्रैकेट. क्लैरिटी? दिस +1 इज आउटसाइड द ब्रैकेट. बेशक ब्रैकेट्स ना भी पुट करें, इट्स परफेक्टली फाइन बिकॉज आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया. सो व्हाट यू डू इज नाउ, कुछ सिंप्लीफाई हो सकते हैं. यू कैन नॉट मल्टीप्लाई 2 इनसाइड द ब्रैकेट. हम 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि होल स्क्वायर है. दिस इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. अनलेस यू ओपन द स्क्वायर, a plus b होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, देन ओनली यू कैन मल्टीप्लाई 2 इनसाइड द ब्रैकेट. रिमेंबर दैट. ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. बेटा प्लीज रिमेंबर दैट. ये 2 अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि होल स्क्वायर है. सो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं. 2 टाइम 8 is 16, so this becomes 2 into x plus 3/4 whole square minus 9/8 plus 1, right? We have the calculators. आप वैसे भी कर सकते हो, just take the LCM. आप साइड पे लिख के LCM ले सकते हो. पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लिया करो, then you write the negative term, right? So आपके पास LCM 8 आ गया. So 8 minus 9 क्या आ गया? That is -1/8, right? So इसको आप फ्रैक्शंस, आप जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, you can write them on a side और इसको आप सॉल्व कर लो. And this is -1/8. ये बेटा आपके पास आ गया the final answer of this expression कि how to convert in the form completing the square, right? So that is how you convert. Coefficient of x square should be 1. 1 नहीं था, we took common. Constant term को just keep it as at a side. हम x वाली terms में से common लेंगे. Remember that बेटा, completing the square form हम सिर्फ x वाली terms का करते हैं, right? To keep it simple, हम complicate चीजों को करने की जरूरत नहीं है. And whatever is the coefficient of x, write it on the side, उसको divide by 2 करो, whole square it, और वही step एक दफा x वाली टर्म में ऐड कर दो और एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दो होल स्क्वायर. तो फर्स्ट 3 टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट होता है. स्क्वायर के अंदर वाली टर्म्स, इधर से x, इधर से 3/4, पुट अ होल स्क्वायर, मिडिल टर्म का साइन. बाकी रेस्ट आप ओपन कर लो. डोंट फॉरगेट द ब्रैकेट्स. ये आपके पास ब्रैकेट है. 2 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, बट रिमेंबर दैट 2 कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड इनसाइड द ब्रैकेट बिकॉज ये होल स्क्वायर है. यू कैन नॉट गो इन द ब्रैकेट, राइट? अनलेस आप बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई नहीं करते. सो यू कैन नॉट मल्टीप्लाई 2 इनसाइड द ब्रैकेट. बाकी बेटा कांस्टेंट टर्म्स को आपने साइड पे लेके एलसीएम ले लेना है. यू हैव द कैलकुलेटर्स, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो. एंड दिस इज योर फाइनल कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म. I hope this is very simple. तो बेटा मैथ्स के अंदर अगेन वही स्टेप्स हैं. Follow the steps, follow the concept. Remember that in a chapter the concept remain the same. In a particular heading, in a particular concept remains the same. ठीक है? So अगर वो I normally call that, अगर वो facts and figures बेटा clear है, and if you practice a bit, वो जो momentum और fluency है, अगर आप थोड़ी सी practice करोगे, that comes with practice, right? So it's 1 + 1. And I'll if you don't understand anything, जरा comments में मुझे बताओ कि if you find anything difficult or if you got the concept 100%, तो just tell me in the comments. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो,
to get notifications of the videos as soon as video is uploaded. I'll keep on uploading videos on different topics so that आपको जो problems हैं जो आपके जिन areas में वो if you go through these तो आपकी बड़ी अच्छी reinforcement होगी, right?